Hello everyone. Today I'm going to start a new chapter that is digestive system. Digestive system. So let us understand first of all that what is digestion. Digestion is a process in which a complex molecule is broken down into simpler molecule. या हम कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स और बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना और तोड़ने के बाद तब बॉडी उसको यूटिलाइज करती है। क्यों तब यूटिलाइज करती है? क्योंकि तभी हमारी बॉडी की सेल्स जो हैं वो उसे अब्जॉर्ब कर पाती हैं, उसे यूटिलाइज कर पाती हैं। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डाइजेशन। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ फ्यू एग्जाम्पल्स। हम जो भी खाते हैं उसमें प्रेजेंट होता है carbohydrates. The nutrients which are present in our food are carbohydrates, fats, proteins, vitamins and minerals. So here we are going to take the example of carbohydrates, fats and proteins. Vitamins and minerals need not to be digested. So let us see here. Let us take the example of carbohydrates. Now carbohydrates can be further divided into monosaccharides, disaccharide and polysaccharides, right? So when carbohydrates are digested, the simplest molecule which we obtain is monosaccharide. यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट के जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं जब उनका डाइजेशन होता है तो हमें जो सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो होता है मोनोसैक्राइड। क्यों? क्योंकि इसके बाद इसका फर्दर डाइजेशन नहीं हो सकता। तो डाइजेस्टिव सिस्टम या हम कह सकते हैं जो प्रोसेस है डाइजेशन का, उसमें क्या होता है, ये जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, दो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको तोड़ते हैं हम ऐसे छोटे मॉलिक्यूल्स में जिनको फर्दर डाइजेस्ट नहीं किया जा सकता। लेट अस टेक अनदर एग्जाम्पल. Another example is of proteins. After the digestion of proteins we get amino acids. यानी कि प्रोटीन को अमाइनो एसिड्स में ब्रेक करना is the मतलब means proteins are broken down into amino acids by the digestion process, right? अब इन अमाइनो एसिड्स को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते। प्रोटीन इज अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल एंड अमाइनो एसिड इज अ सिंपल मॉलिक्यूल। Let us take one more example, that is fat. This fat can be further broken down into fatty acids and glycerol. So fat is a complex molecule and fatty acid and glycerols are the digested products of fat, or we can say the simplest ones. So this entire digestion process occurs with the involvement of alimentary canal. Along with that, some digestive glands are associated with this canal. Means the glands which are helpful in the process of digestion. So in this video, we will come to know about the structure of alimentary canal. Along with that, we will see some glands which are associated with the process of digestion. Let us start with the mouth area, or we can say the buccal cavity, right? So here you can see that this part we are going to study in detail. Now one more thing I would like to tell you, this is an entire structure of alimentary canal. Alimentary canal starts with mouth and ends at anus. Now let us study in detail about the structure of alimentary canal. We will start with buccal cavity. Buccal cavity means the cavity of the mouth, or we can say the oral cavity. जब हम अपना माउथ ओपन करते हैं तो जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज द बकल कैविटी. नाउ द पॉइंट वेयर द बकल कैविटी एंड द नेसल कैविटी मीट. नेसल कैविटी मीन्स द रीजन प्रेजेंट इन द नोज, राइट? तो नेसल कैविटी और बकल कैविटी जिस पॉइंट पर मीट करते हैं उसी पॉइंट को हम कहते हैं pharynx. इट इज कॉल्ड एज pharynx. Now let us see some glands which are present in around this area, around the buccal cavity area, right? So those glands are the salivary glands. Now what do you understand by salivary glands? Salivary glands are the glands which are responsible for the production of saliva. Now we will discuss the function of saliva in detail in the next videos, right? In the upcoming videos. Now there are three types of salivary glands.
present in the buccal cavity region. They have different locations. Some are present beneath the ear, some is present below the tongue, right? So locations are different. We will study the location of each and every salivary gland when we will see the video of that saliva part, right? Now first of all, let us see the types of salivary gland. There are three types of salivary gland: parotid, submandibular and sublingual. Here you can see the location. This one is the parotid gland, this one is the sublingual gland, and this one is the submandibular gland. The function of all three salivary glands is to produce saliva. I hope it is clear now. So parotid gland, buccal cavity means the cavity of the mouth, submandibular and sublingual gland we have done. Now this continues into the food pipe, which is also called as esophagus. Now let us move on. Here you can see that this purple tube, that is this one, this purple tube, this one is the esophagus, and this pierces a muscular structure which is called as diaphragm. Diaphragm is a thick muscular structure. The portion which is present above the diaphragm, this portion is called as the thoracic region of our body, and here only the lungs are present, and in between the lungs the heart is present, right? Now below the diaphragm region is the abdominal region. Now here you can see that this food pipe opens into an elastic bag like structure which is called as stomach. Now stomach, the lowest part of the stomach, this part is called as pylorus. Now this pylorus has some circular muscles, and those circular muscles are called as sphincter muscles. तो ये जो स्टमक का लोएस्ट पोर्शन होता है, इसको हम, इस पार्ट को हम पाइलोरस कहते हैं, और यहाँ पर जो सर्कुलर मसल्स प्रेजेंट होती हैं, इस रीजन को हम कहते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर मसल. यानी कि जब हम फूड च्यू करेंगे, च्यू करने के बाद जब हम फूड को स्वालो करेंगे, तो वो ईसोफेगस से होता हुआ कहाँ आएगा? हमारे स्टमक में आएगा. स्टमक में डाइजेशन के बाद फर्दर ये पायरोलिक स्फिंक्टर से होता हुआ जो नेक्स्ट पार्ट आएगा एलिमेंट्री कैनाल में, दैट विल बी स्मॉल इंटेस्टाइन. अब ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, और वो 3 पार्ट है डियोडेनम, जिजनम एंड इलियम. और आपने यहाँ देख सकते हैं, लास्ट में देखिए ये पिंक कलर का जो मैंने यहाँ एंड किया है, इट इज़ एंटरिंग इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट हैं, सीकम, कॉलन और लास्ट पार्ट है रेक्टम यहाँ पर, और फाइनली एनस. यानी कि अगर हम पूरे एलिमेंट्री कैनाल के बारे में बात करें, तो एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड एंड्स एट एनस. सो लेट अस रिवाइज क्विकली कि मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल में अभी तक कितने स्ट्रक्चर्स पढ़ा दिए हैं. एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होता है, तो वी विल स्टार्ट विद बकल कैविटी, और बकल कैविटी के अराउंड मैंने आपको 3 सलेवरी ग्लैंड्स बता दिए, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल ग्लैंड. फिर आया हमारा ईसोफेगस फूड पाइप, स्टमक, स्टमक से फिर स्टार्ट हुआ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन. ये पूरा हाईली कॉइल्ड पार्ट इज कॉल्ड एज द स्मॉल इंटेस्टाइन. आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन कम्स, और लार्ज इंटेस्टाइन में ही लास्ट पार्ट हमारा होता है क्या? एनस. स्मॉल इंटेस्टाइन हैज 3 पार्ट्स, दैट इज डियोडेनम, I am writing here, duodenum. The second part is called as jejunum, and the last part is called as ileum. Now this large intestine also has 3 parts, और वो हो जाएगा हमारा सीकम, colon and rectum. I hope इतना क्लियर है. Now let us study some more structures which are associated with digestive system, with this alimentary canal. Here you can see liver. Liver is the largest gland of the body, right? And it secretes a juice which is called as bile juice, which helps in the digestion process, which we will study in detail in the upcoming videos, right? So here I am going to explain you one more structure, that is hepatic duct. कहीं पर भी अगर आपको हेपार लिखा हुआ मिलता है ना,
तो आपको ये समझ जाना है कि ये लिवर से रिलेटेड है। तो ये जो हेपाटिक डक्ट है, ये डक्ट राइज हो रही है लिवर से। अभी मैं इस पिक्चर को जूम करती हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, मैंने ग्रीन कलर से ए दिखाया है। ये जो डक्ट है ये है हेपाटिक डक्ट, और ये जो ब्लैडर लाइक स्ट्रक्चर, इट इज कॉल्ड एज गॉल ब्लैडर। अब लिवर से जो डक्ट निकल रही है उसको हम कहते हैं हेपाटिक डक्ट, और गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलती है उसको हम कहते हैं सिस्टिक डक्ट। ये दोनों डक्ट मिल करके बनाती हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये देखिए, यहाँ पर मैंने लेबल किया है ये, और यही कॉमन बाइल डक्ट आकर के ओपन होती है स्मॉल इंटेस्टाइन के डिओडेनम में। मैं फिर से बोल रही हूँ, लिवर से जो डक्ट राइज होती है दैट इज कॉल्ड एज हेपाटिक डक्ट। गॉल ब्लैडर से जो डक्ट राइज होती है उसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट, और ये दोनों डक्ट कंबाइन होकर के जो डक्ट बनाती हैं दैट इज कॉल्ड एज कॉमन बाइल डक्ट। लिवर से बाइल जूस निकलता है, और वो बाइल जूस हेपाटिक डक्ट के रास्ते आता है हमारा कहाँ पर, डिओडेनम में आता है। ठीक है, ऐसा भी होता है कि ये बाइल जूस जाकर के गॉल ब्लैडर में स्टोर होता रहता है, और धीरे धीरे गॉल ब्लैडर से भी निकल करके हमारे डिओडेनम में आता है। मेन फंक्शन ऑफ गॉल ब्लैडर इज टू कॉन्सेंट्रेट द बाइल जूस, बट एट योर लेवल वी टीच दैट उसका काम होता है बाइल को स्टोर करना। एक्चुअली वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होता ही है, उसके साथ साथ वो बाइल जूस को कॉन्सेंट्रेट करता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे कुछ स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द एलिमेंट्री कैनाल। वन मोर ग्लैंड इज देयर दैट इज कॉल्ड एज पैंक्रियास. This pancreas is also called as a mixed gland. Mixed gland means it has both endocrine as well as exocrine part. अब ये endocrine और exocrine क्या है, थोड़ा ये भी मैं बता देती हूँ। देखिए, हमारी बॉडी में दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एक्सोक्राइन और दूसरा होता है एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन का मतलब होता है ऐसे ग्लैंड्स जिनके पास डक्ट प्रेजेंट होती है, और एंडोक्राइन का मतलब होता है ऐसे ग्लैंड जिनके पास डक्ट प्रेजेंट नहीं होती है। अब इसको कैसे समझाना है, ये देखिए, मान लीजिए ये हो गया हमारा पैंक्रियास, ये है पैंक्रियास। ठीक है, इससे ये डक्ट निकल रही है और ये डक्ट आके डिओडेनम में खुल रही है। तो इस ग्लैंड के पास डक्ट प्रेजेंट है कि जो भी सिक्रीशन पैंक्रियास देगा वो इस डक्ट में आएगा और डक्ट के थ्रू डिओडेनम में आएगा। इट हैज़ पैंक्रियाटिक डक्ट। ठीक, तो इसका ये पार्ट हुआ एक्सोक्राइन। अब इसी पैंक्रियास में कुछ ऐसा भी पार्ट है जिसके पास कोई भी डक्ट प्रेजेंट नहीं होती और वो अपना सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में मिक्स कर देता है। तो इस तरह के ग्लैंड्स को हम कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। और एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं उस सिक्रीशन को हम कहते हैं हॉर्मोन्स। तो आई होप इतना समझ में आ गया है। तो पैंक्रियास इज कॉल्ड एज हेट्रोक्राइन ग्लैंड और अ मिक्स्ड ग्लैंड क्योंकि इसके पास दोनों ही पोर्शन प्रेजेंट होते हैं, एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। यहाँ पर वी विल स्टडी अबाउट द एक्सोक्राइन रोल ऑफ पैंक्रियास, यानी कि जो पैंक्रियाटिक डक्ट है वो पैंक्रियाटिक जूस को लेके आएगी जो फूड को डाइजेशन या डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये हो गया हमारा इतना पार्ट। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं और क्या स्ट्रक्चर्स हैं। देखिए, मैंने आपको बताया लार्ज इंटेस्टाइन में 3 पार्ट होते हैं। ये हो गया सीकम, फिर आया कोलन, फिर आया रेक्टम और फिर आया एनस। कोलन ऐसे जा रहा है, दिस वन इज कॉल्ड एज असेंडिंग, फिर ऐसे हुआ, इसको कहेंगे ट्रांसवर्स, और फिर नीचे जा रहा है, इसको क्या कहेंगे, डिसेंडिंग कॉलन। फिर आया रेक्टम और फिर आया एनस। इसी सीकम से अटैच्ड एक और स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं अपेंडिक्स, या पूरी तरह से हम इसका नाम लिखते हैं वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। ना, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स का क्या मतलब है? ये अपेंडिक्स एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। वेस्टिजियल का मतलब होता है फंक्शन लेस। इसका मतलब क्या है? ये हमारी बॉडी में प्रेजेंट तो है और पहले कभी फंक्शनल रहा होगा, लेकिन अब ये हमारी बॉडी में कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, इसलिए इसको हम कहते हैं वेस्टिजियल ऑर्गन या वेस्टिजियल स्ट्रक्चर। सो अगर आपसे कोई पूछता है व्हाट इज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, तो यू हैव टू टेल दैट इट डोंट हैव एनी फंक्शन इन आवर बॉडी, डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन। और इस तरह के स्ट्रक्चर को हम वेस्टिजियल कहते हैं जो कभी पास्ट में कोई फंक्शन परफॉर्म करता रहा होगा, लेकिन अब इट इज़ नॉट परफॉर्मिंग एनी फंक्शन।
अच्छा, अपेंडिक्स में जब इन्फेक्शन हो जाता है उस कंडीशन को हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। और जब सीरियस हो जाता है या सीवियर होता है, बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसको ऑपरेट करके बॉडी से हटा दिया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल. Thank you. That's all about alimentary canal, and in the coming videos we will study in detail about the digestion process. Thank you.